Good morning students. Now today we are going to discuss about the lecture number 10. In this lecture we are going to study about the structured query language. You can see we are having the structured query language as a language that is being needed to make the query, to define the query. So we will have the basic SQL that we are going to study. In this we will have the following outlines that we are going to cover. The first is the SQL data definition and data type, which comprises of the schema and the catalog concepts of the SQL, along with the command that is being needed to create the table. We will also discuss about the attribute, data type and the domains in SQL. After that, we will specify some constraints that are being needed inside in the SQL. That can be the attribute constraint or the attribute default. It also comprises of the other constraints like the key and the referential integrity constraints. It comprises to the giving names to the constraints. Also specifying constraints on the tuple using the check. Besides this, we will also cover the basic retrieval queries in the SQL. That is how the basic SQL query is being defined. It is being made with the basic syntax that comprises of the select from where. Along with this, we are having some ambiguous attribute names, aliasing, renaming and the tuple variable. We will also see that if we are not going to specify the complete syntax, then how the query is going to be defined. Also the use of the asterisk table inside in the SQL. We will also study in it the pattern matching and the arithmetic operators that are being defined. Besides this, we will also study and complete the insert, delete and update statements that are being utilized inside in the SQL. So this is the basic SQL structure that we will cover whenever we are going to discuss about the basic SQL. We are going to discuss these four things, that is A, B, C and D, one by one. So the first thing is we should know about the introduction of the SQL. Before going into the basic constructs that is being needed for the SQL, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि SQL होती क्या है और ये SQL वर्ड कहाँ से आया है. देखिए, जब भी हम SQL के बारे में बात करते हैं तो SQL सबसे पहली बात SQL वर्ड से बना है, जो कि ओरिजिनल टर्म था जिसको कि हमने SQL कहना चाहिए. हमने SQL टू स्क्वायर के वर्ड से इसको डिफाइन किया था. SQL टू स्क्वायर को चैम्बरलेन और बॉयस ने दिया था. IBM could not copyright that term, so they made and defined a new term from this term, that is SQL. So सबसे पहली बार SQL वर्ड से SQL बनी है. SQL टू स्क्वायर उसका पूरा नाम था, जो कि पहले चैम्बरलेन और बॉयस ने डिफाइन किया था SQL के लिए. लेकिन SQL डिफाइन नहीं हो पाई उस नाम से कॉपीराइट की वजह से. बाद में उसका नाम प्रॉपरली SQL कर दिया. SQL जिसका कि फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है. SQL एक इनफॉर्मल और प्रैक्टिकल मेथड है रिलेशनल डेटा मॉडल से डिफाइन करने के लिए. आप जब भी रिलेशनल मॉडल में कुछ भी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम SQL को यूज़ करते. अब हमारे पास सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है, आप देख सकते हैं वो क्या है, SQL डेटा डेफिनेशन, जिसके अंदर डेटा टाइप्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं. तो सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए जो कि SQL के अंदर यूज़ करी जाती है. देखिए, हम SQL के अंदर जब भी जो भी काम करते हैं तो वो टेबल के फॉर्म में करते हैं. आप जानते हैं कि टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम होती हैं. तो रोज़ और कॉलम से मिलकर एक टेबल बना होता है, जिसको फॉर्मली रिलेशनल मॉडल में हम रिलेशन, टपल और एट्रीब्यूट के नाम से हमारे पास क्रिएट स्टेटमेंट एक वर्ड है. क्रिएट स्टेटमेंट एक कमांड होता है जो कि मेन SQL का कमांड होता है किसी भी डेटा को डिफाइन करने के लिए. अब बात आती है कि अगर हम SQL के स्कीमा की बात करें, कैटलॉग के बारे में बात करें, तो वो क्या होता है. देखिए, SQL का स्कीमा सबसे पहले स्कीमा के नेम से, जैसे डेटाबेस का नेम होता है वैसे ही स्कीमा का नेम होता है, उससे डिफाइन किया जाता है. इसके अंदर कुछ ऑथराइजेशन आइडेंटिफायर्स होते हैं, डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जो कि हमें कंप्लीट जो कि इसके एलिमेंट्स को डिफाइन करता है. स्कीमा के एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्कीमा के पास टेबल्स होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, व्यूज़ होती हैं और भी कई चीज़ें होती हैं जिनसे स्कीमा मिलकर बना हुआ होता है. सबसे पहली बात, जब भी हम SQL के स्टेटमेंट को लिखते हैं तो वो सेमीकोलन से एंड होता है. क्रिएट स्कीमा के स्टेटमेंट से कोई भी स्कीमा बनता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट स्कीमा स्टेटमेंट है जो कि इस सिंटेक्स से स्कीमा को डिफाइन करता है. कैटलॉग क्या होता है, नेम्ड कलेक्शन ऑफ स्कीमाज.
So we are having the create schema statement through which you can see the example of company. We have what we were discussing from the previous so many days in the previous lecture we have seen. We are going to create the schema of the company. So this is the general syntax that says create schema company authorization J Smith. That means J Smith is the author. Authorization means J Smith is the author to create the company schema that is being created by the create command. So this is the general syntax of the create table command through which the schema is actually going to be created inside in the SQL. So if we see simple features about the create table, so you can see it creates always a new relation, provides the name of the table, it specifies the attribute, their types and initial constraints. Can optionally specify schema. That means we are having the create table employee, create table company dot employee. If we are going to create now a table inside in the company or a relation inside in the company, अगर अब हमें कंपनी के अंदर रिलेशन बनाना है एम्प्लॉय, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल कंपनी एम्प्लॉय को बनाएंगे. तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय मेरा वही एक सिंटैक्स है जिसके थ्रू मैंने एम्प्लॉय को बनाया है टेबल के अंदर. बेस रिलेशंस क्या कहते हैं, रिलेशंस एंड इट्स टपल्स आर एक्चुअली क्रिएटेड एंड स्टोर्ड एज अ फाइल बाय द DBMS. तो रिलेशन और उसके टपल्स एक्चुअली क्रिएट होते हैं, स्टोर्ड होते हैं फाइल में DBMS में. हमारे पास कुछ वर्चुअल रिलेशंस भी होते हैं जिनको कि सिर्फ हम फिजिकली डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो वो हम क्रिएट व्यू स्टेटमेंट से SQL के अंदर देखते हैं. तो क्रिएट टेबल कमांड हमारा इसीलिए यूज़ होता है कि हमें कोई भी रिलेशन बनाना है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. अब अगर आप सिंपली देखें तो ये एक हमारा सिंपल डेटाबेस है कंपनी रिलेशन का, जो कि हमने अभी तक देखते हुए आए हैं. इस कंपनी रिलेशनल डेटाबेस को हमने SQL के थ्रू बनाया है. तो हमारे पास ये 6 रिलेशंस हैं, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट से लेके डिपेंडेंट तक. हर रिलेशन के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स हैं. अब अगर मैंने सिंपली उसके अंदर कोई भी एक पॉसिबल स्टेट देखूं तो आप ये देख सकते हैं ये एक टेबल बना है जो कि एम्प्लॉय रिलेशन का है. एम्प्लॉय का टेबल है जिसके अंदर ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब कॉलम्स हैं, और ये उसकी रोज हैं या फिर टपल्स हैं. आप देख सकते हैं हर इसी तरीके से सारे के सारे टेबल्स SQL के अंदर बनाए गए हैं. अब अगर हम सिंपली देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये जो स्कीमा था इसको बनाने के लिए हमने क्रिएट टेबल कमांड को यूज़ किया. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, सबसे पहले एम्प्लॉय का टेबल बनाएंगे, ये उसके एट्रीब्यूट्स देंगे, ये उसके कैरेक्टर्स हैं कि हमने डेसिमल टाइप लिया है, वेरिएबल टाइप लिया है, इंटीजर टाइप लिया है, और ये कौन कौन सी जो हमारे पास इंटीग्रिटीज़ होंगी या और भी अदर पैरामीटर्स होंगे उसको हमने नॉट नल लिया है. इसके अंदर कौन सी प्राइमरी की है ये भी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ किया है और डिफाइन कर दिया है. इस तरीके से हमारे पास क्रिएट टेबल कमांड काम करता है. अब हमारे पास so you can see this is the simple example that creates the company schema and what are the various types of tables that are being present, how it is going to be created with the help of the create table command. So with this example we can completely say that the create table command is used to create the table inside in the schema along with the specification of the attributes, primary key and other types of foreign key or any other thing. Now if we see some important things inside in the create table command, then we are having the foreign keys. The foreign key may cause errors and therefore we need to specify it either by specifying it previously, or if the table has not been created and we are referencing it, that means DBA can stop the referential integrity. तो हमारे पास क्रिएट टेबल कमांड इसीलिए यूज़ किया जाता है कि हम फॉरेन की, प्राइमरी की जो भी हैं सब उसके अंदर क्रिएट करें और डिफाइन करें प्रॉपरली, जिससे कि हमारे को जो भी आगे टेबल क्रिएट करना है, यूज़ करना है, उसमें उसको दिखाया जा सके. अब अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट इज दिस एट्रीब्यूट डेटा टाइप्स एंड द डोमेन. SQL के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज़ किए जाते हैं, उनका क्या डोमेन्स होती है एट्रीब्यूट की, ये सब हम देखेंगे. तो सबसे पहली बात, SQL के पास बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि न्यूमेरिक डेटा टाइप जिसके अंदर इंटीजर या स्मॉल इंटीजर या फ्लोट आते हैं. आप देख सकते हैं इंटीजर को हम पूरा फुल फॉर्म में लिखते हैं या शॉर्ट में INT लिख देते हैं. ऐसे ही रियल नंबर के लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं या रियल यूज़ करते हैं. कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के लिए हम कैरेक्टर या कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर डिफाइन करते हैं. इसी तरीके से बिट स्ट्रिंग के लिए हम बिट यूज़ करते हैं या बिट वेरिंग यूज़ करते हैं. बूलियन डेटा टाइप्स के लिए हम ट्रू फॉल्स यूज़ करते हैं और डेट के लिए हम ईयर मंथ और डे यूज़ करते हैं. इसी तरीके से एडिशनल डेटा टाइप्स में हम टाइम स्टैम्प को डिफाइन करते हैं जो कि डेट और टाइम को डिफाइन करती है. इंटरवल में डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, डेट टाइम स्टैम्प के बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं. अगर हम कॉन्स्ट्रेंट को स्पेसिफाई करें तो हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं.
अब अगर सबसे पहली बात, 3 तरीके का कॉन्स्टेंट हम शुरू से देखते हुए आए हैं, जो कि की, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। आप जानते हैं कि की कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे की कॉन्स्टेंट काम करता है। एंटिटी इंटीग्रिटी कहता है कि प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट कहता है कि फॉरेन की जब भी यूज़ करी जाती है तो उसकी एक वैल्यू होगी जो कि प्राइमरी की से हमेशा लिंक करेगी, या फिर वहाँ पर नल नहीं होगी, या वहाँ पर नल होगी। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर हमेशा काम करते हैं। इसी तरीके से अगर हम सबसे पहले एट्रीब्यूट कॉन्स्टेंट की बात करें तो हमारे पास एट्रीब्यूट की डोमेन्स होती हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है। कभी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एट्रीब्यूट की हमारे पास डिफ़ॉल्ट होगी, जिसको कि हम डिफ़ॉल्ट से डिफाइन करेंगे। नल यहाँ पे परमिटेड नहीं होता है, हमारे पास नॉट नल यूज़ किया जाएगा। चेक क्लॉज से हम डी नंबर को डिफाइन करते हैं कि डी नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या डी नंबर की वैल्यू 21 से कम है। तो कहने की बात यह है कि एट्रीब्यूट और उसके कॉन्स्टेंट को भी हम हर कदम पे एसक्यूएल के अंदर चेक करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ की रेफरेंशियल, जैसा कि अभी आपको बताया, तो अगर मैं प्राइमरी की वाले क्लॉज को देखूं तो ये सबसे ज़्यादा 1 या 1 से ज़्यादा एट्रीब्यूट के अंदर यूज़ किया जाता है प्राइमरी की के रिलेशन को बताने के लिए। अगर डी नंबर है तो इंट प्राइमरी की कहलाएगा। यूनिक क्लॉज से हम कितनी हमारे पास सेकेंडरी कीज़ हैं, ऑल्टरनेट कीज़ हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी की का क्लॉज यूज़ कर दूंगा तो वो स्पेसिफिकली ये बताएगा प्रोग्राम में, क्वेरी के अंदर, कि कौन सा एट्रीब्यूट मेरा प्राइमरी की है। और अगर मैं यूनिक यूज़ कर दूंगा तो वो ये बताएगा कि कौन सी ऑल्टरनेट कीज़ मेरे पास मॉडल के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरीके से हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फॉरेन इंटीग्रिटी, इन सबको स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, फॉरेन की के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम फॉरेन की को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास रिजेक्ट, अपडेट या वायलेशन होता है, रेफरेंशियल ट्रिगर्ड एक्शन होता है जिसके बेसिस पे हम सेट, नल, कैस्केड को यूज़ करते हैं, और डीबीएमएस हमेशा या तो उसकी वैल्यू को नल कर देगा या डिफ़ॉल्ट कर देगा, जिससे कि हम डिलीट या अपडेट रिलेशन को एक्चुअल में डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फॉरेन की का क्लॉज है जो कि प्रॉपरली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर हम कॉन्स्टेंट की बात करें तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है कॉन्स्टेंट, जिसका कि नेम ही कॉन्स्टेंट होता है, जिसको कि बाद में डिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट टेबल मैंने एम्प्लॉय का किया, इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर को इंटीजर लिया, नॉट नल है मतलब इसकी वैल्यू नल नहीं है, इंटीजर टाइप है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसके अंदर, इस टेबल के अंदर अगर मैं कॉन्स्टेंट की बात करूं तो एम्प्लॉय का पी के नंबर जो है मेरे पास वो एक कांस्टेंट है, और प्राइमरी की इसके अंदर एसएसएन है। इस तरीके से एम्प्लॉय सुपर जो है वो फॉरेन की है जो कि एक कांस्टेंट की तरह काम कर रही है। फॉरेन की क्योंकि यहाँ पे सुपर एसएसएन है तो रेफरेंसेस जो होंगे वो एम्प्लॉय टेबल से होंगे। अगर हमने उसे डिलीट कर दिया तो डिलीट पे सेट नल होगा, और अपडेट कर दिया तो वो कैस्केड कहलाएगा। कहने की बात यह है कि एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में क्या क्या रिलेशंस हैं ये हम आसानी से देख सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम एक टेबल से दूसरे टेबल की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के एट्रीब्यूट्स को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स को चेक करना चाहता हूं कि ये एट्रीब्यूट्स में मेरे कॉन्स्टेंट प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैं चेक क्लॉज से उसको डिफाइन करता हूं। चेक क्लॉज क्या करता है, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में यूज़ किया जाता है, हर टपल के लिए इंडिविजुअल होता है, जिसके बेसिस पे मेरा सारा का सारा काम डिफाइन किया जाता है। तो चेक के बेसिस पे मैं उसको एक्चुअल में डिफाइन करता हूँ। With this, the lecture ends.